Good evening and welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. The big story today, and make no mistake about it, it's the biggest development of the last 1.5 months. China has finally blinked on the border face-off with India at Ladakh. We've got inside news on what is happening. Here is what we've learned from our sources. Remember, there are 3 main flashpoints in Ladakh: at the border, at Galwan, Pangong Tso and Hot Springs. Now here's what we've been told about Galwan Valley. The eyeball-to-eyeball confrontation in the area has ended. Both sides, India and China, have moved back between 1 and 2 kilometers. The disengagement has been in PP14, PP15 and PP17 areas. You don't need to worry about the technicalities. What really matters is the fact that at one point both the forces were face to face. Now they have both decided to retreat. When China positioned their troops, India retaliated in equal measure. Now there has been a disengagement. In the tense critical finger area, which means at Pangong, China has reduced concentration of its troops. The boats of the People's Liberation Army have been withdrawn as well. But make no mistake, there is no whitewashing. There are issues that are still outstanding. Only one meeting of the corps commanders has happened so far. There will be more meetings, and these are the issues that will be taken up there. Chinese military build-up in the rear areas, including about 100 tanks and artillery. From Daulat Beg Oldi in north to Chushul in south, the Chinese have deployed 1 division of their army. 2 regiments of Chinese tanks and an equal number of artillery have also been deployed in this area. Further talks will now be held, and they are scheduled to be held to resolve this as well. But in the midst of all this, we have full-fledged politics taking place in our country. Quite predictable. The combined opposition has questioned what they call the government's surrender and silence before China's aggression. So to respond to that, I have the most apt person, the Member of Parliament of the region, who incidentally has toured that area at the line of actual control extensively to see what is really happening. He joins us now. एक सवाल ये है कि अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स बहुत हो रही है. राहुल गांधी जी ने कल और कांग्रेस ने आज बोला है कि क्या चाइना हमारे जमीन पे कब्जा कर रही है? इज चाइना? क्या बोलेंगे उनको? राहुल गांधी जी का सवाल सही पूछा है. मैं उसको जवाब भी सही देना चाहूंगा. चाइना ने इंडिया के लैंड को ऑक्युपाइड किया है. अक्साई चीन पूरा 37,000 स्क्वायर किलोमीटर कांग्रेस के रीजन जब था, तब जाके अक्साई चीन हमारे हाथ से चले गए. कांग्रेस की रीजन जब 2014 तक था, तब मैं अगर थोड़ा आप समय दे, मैं 1 to 1 बताना चाहूंगा आज देश को, क्योंकि बहुत अफसोस हुआ इस संवेदनशील मुद्दे को लेके कांग्रेस पार्टी और उनके लीडर जो है पॉलिटिसाइज कर रहा है. हालांकि हमें देश के ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए. मैं आपसे समय लेके बताना चाहूंगा, मैंने इस 3 दिन के प्रवास से पहले, टूर से पहले, मैंने चुमूर, दिमजोक, छागा, जो एग्जैक्ट जो बॉर्डर लाइन है, वहां मैंने टूर किया. तो चुमूर से मैं शुरू करना चाहूंगा. चुमूर के आगे 100 किलोमीटर दूर जो है हमारा छाबजी जो वैली है, वहां हमारे लोग आज से 12 साल पहले तक, यानी कि 2008 तक हमारे लोग वहां पे खेती करते थे. तब कांग्रेस सरकार था, हमारे लोगों को वहां जाने नहीं दिया इंडियन आर्मी के माध्यम से. 2008 से जो है हमारे लोग आज वहां नहीं जा रहे. उससे भी आगे, छबजी वैली से भी आगे 150 किलोमीटर आगे जो है एक त्यापंगनाक वैली है, जहां पे हमारे कोरजोक वालों का, विलेज का नाम मैं ले रहा हूं, कोरजोक वालों का समर कैंप है. वहां पे जाके विंटर कैंप है, वहां पे पूरे विंटर बैठते थे. आज हम वहां नहीं जा सकते थे. तो चुमूर के एग्जैक्ट आज जो बॉर्डर लाइन लगा है, उससे 250 किलोमीटर जो है 2008 से पहले हम खो चुके हैं. तब कांग्रेस सरकार थे, मैं ये याद दिलाना चाहूंगा. दिमजोक में 2008 तक जिस एरिया में जोरावर फोर्ट था, जम्मू के जो जोरावर सिंह का जो फोर्ट था, वो जोरावर फोर्ट को 2008 में चाइना के पीएलए ने तोड़ के वहां पे ऑब्जर्विंग पॉइंट पीएलए का लगाया. तब 2012 में वो कंप्लीट हुआ. कांग्रेस के सरकार थे, हमारे सिविलियन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, भाई ये हमारा जमीन है. तब हमारे लोगों को ये बताया गया, ये
इंडिया में तब ओलंपिक हो रहे थे, ओलंपिक के लिए ये लगा रहा है, जैसे ओलंपिक खत्म हो जाएगा ये हट जाएगा। वो आज तक नहीं हटा है। ये कांग्रेस सरकार के सहमति से हमारे लैंड वहां पे लॉस हुआ है। उससे आगे आके मैं आपको और एक नाम जो बहुत कम चर्चा में आते हैं, धूम सेले। हमारे लोग वहां पे 2008-9 तक जाते थे गाय जो भेड़ बकरी पश्मीना गोट चराने के लिए। 2008-9 से वहां हमारे लोगों को जाने नहीं दिया इंडियन आर्मी के जरिए, आईटीबीपी के जरिए। तब कांग्रेस के सरकार थे। आज जो है मोदी सरकार 2014 में आने के बाद 1 इंच का जमीन भी जो है चाइना की तरफ नहीं गए हैं। और मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जिस डेमजोंग और धूम सेले का मैंने नाम लिया, वहां पहुंचने से 100 किलोमीटर आगे यानी कि लेह के तरफ, सिटी के तरफ जो है लोमा बैंड आते हैं, वहां पे एक ब्रिज है। उस ब्रिज पे हमारे डेमजोंग के रेजिडेंट को, इंडियन सिटीजन्स को जो वहां पे परमानेंटली रहते हैं, जब वो लोग मार्केट में शॉपिंग के लिए आते हैं, कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए आते हैं, शाम को वो घर जाते हैं तो उनका तलाशी लिया जाते हैं। पूरे उनके झोला खोल के, कपड़ा उतार के उनका तलाशी लिया जाते थे। वो कांग्रेस के सरकार के बॉर्डर पॉलिसी थे। मोदी सरकार आने के बाद हमने वहां अपने लोगों को तलाशी लेना बंद किया। आज सिर्फ वहां पे जो व्हीकल आना जाना होता है उनका रजिस्ट्रेशन होता है, एंट्री होता है। किसी भी अपने लोगों को, अपने सिटीजन को तंग नहीं करते हैं, तलाशी नहीं लेते हैं। आज मैं इस बात को 2-3 दिन से मीडिया में देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी किस मुंह को उठा के सवाल कर रहा है, ये देश को समझ में आना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसलिए सवाल कर रही है, वो कह रही है कि जो 62 में हुआ वो हुआ। आज जो है चाइना चुपके चुपके जरा जरा सा लैंड हमारा ले रहा है और सरकार चुप है, बीजेपी चुप है, छुपा रही है। मैं याद दिला दूं, 2014 से जब मोदी सरकार आया, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है, 2014-15 में डेमजोंग में चाइना ने इंट्रूजन करने की कोशिश किया। मोदी सरकार ने वहां पे करार जवाब दिया। लास्ट 2019 दिसंबर 25 डेट, मैं आपको डेट बता रहा हूं, जो धूम सेले से आगे आके जो कपजुंग वैली है, हमारे लोगों के विंटर जो पस्चर लैंड है, वहां घुसने की कोशिश किया। हमारे इंडियन आर्मी वहां जाके सबको दखल करके बाहर कर दिया, अपने रास्ता दिखा दिया। वो कोई भी 1 इंच जमीन नहीं गया है। आज जो सिचुएशन चल रहा है उस पे मोदी सरकार जो है डिप्लोमेटिक टॉक और मिलिट्री लेवल पे टॉक जो अभी राउंड ऑफ द टॉक चल रहा है, उस पे मीडिया में भी आया। गलवान नाला में कुछ किलोमीटर जो है चाइनी का पीएलए जो है वो वापस चले गए, ऐसा इंफॉर्मेशन जो है मीडिया के माध्यम से हम सबको सुनने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ के संसद होने के नाते, यहाँ के ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए मैं देश को ये बता सकता हूँ, मोदी सरकार जब तक देश में है तब तक बॉर्डर का 1 इंच जमीन भी हम नहीं खोएंगे। क्योंकि बार बार ये बोला जाता है कि गुजरात में आते हैं चाइनीज प्रीमियर, उनको चेन्नई ले जाया जाता है, पर एंड में वो हमें लाल आंख दिखा करके चले जाते हैं। नहीं, 2014 से मैंने कभी, अगर चाइना ने 2014 से आगे लाल आंख दिखाने की कोशिश किया तो मोदी जी ने भी 56 इंच का सीना छुपा के नहीं रखा है। पर अभी जो ये स्टैंड ऑफ हो रहा है उससे तो 56 इंच के सीने के ऊपर ही सवाल उठाया जा रहा है कि वेयर हैज द वुहान स्पिरिट गॉन। ये स्टैंड ऑफ जो है पहली बार नहीं हो रहा है। स्टैंड ऑफ जो है पहले भी अगर आप रिकॉर्ड खोल के देखो तो 100-200 बार होते आया है। लेकिन मोदी जी की सरकार जब से आए तब से स्टैंड ऑफ का जवाब भी दिया गया है और डिप्लोमेटिक टॉक पे, मिलिट्री टॉक पे इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। हम चुप नहीं बैठे हैं, हम अपने जमीन को अपने पास रखने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की तरह हम ये नहीं कहते कि 62 में जो गया गया। मोदी सरकार है, हम खुला कहते हैं अक्साई चीन भी हमें वापस चाहिए, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का शबगम वैली भी हमें वापस चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान भी हमें वापस चाहिए। ये देश का पहला सरकार है जो पार्लियामेंट में दावा ठोक के बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि जो गया गया। ये सरकार जो है ऐसे मानने वाला नहीं है, जो गया गया उस पॉलिसी पे हम नहीं चलेंगे। आप दोबारा कह रहे हैं कि अक्साई चिन भी लेंगे हम। गलवान दूर की बात है, गलवान तो है ही है, अक्साई चिन भी लेंगे। अपने देश की जमीन है, वो अपने देश की जमीन है। उसको मैं कहता हूं चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख है। अक्साई चीन का नाम भी नहीं रखना चाहिए, वो चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख है। वो शक्सगम वैली जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो है, वो भी जो है चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख है। वो इंडिया का टेरिटोरी है। जब अपने जमीन जो है अपने पास होना जरूरी है। इंटरेस्टिंग। आपको
कितना टाइम लगता है कि ये स्टैंड ऑफ चलेगा? क्योंकि आज हमारे पास खबरें आ रही हैं कि 2-2.5 किलोमीटर पीछे हट गई है चाइनीज आर्मी। आपको क्या सुनने में आ रहा है? हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन? ये जो कल 6 तारीख से टॉक शुरू हुआ, मुझे यकीन है आने वाले 2-3 दिन में ये सारा क्लियर करके जो डिसीजन लेना है मोदी सरकार लेके, चाइना के साथ डिसीजन लेके अपने अपने जगह पे, पीएलए हो, इंडियन आर्मी हो, दोनों अपने अपने जगह पे बैठेंगे वापस जाके। देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स कि इंक्रीज्ड फाइटर जेट की एक्टिविटी है चाइना की अक्रॉस द एलएसी पर है। ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व किया है कि चाइनीज फाइटर जेट्स वहां पर एक्टिव? ना ये मैंने देखा, ना मैंने सुना, ना कोई यहाँ के लोकल रेजिडेंट ने जो है मेरे ध्यान में नहीं लाया अभी तक। आज के दिन ऐसी खबर आ रही है कि 2-2.5 किलोमीटर चाइनीज पीछे हट गए हैं। आप क्या सुन रहे हैं? मैंने 3 दिन पहले ग्राउंड पे जाके वहां अपने लोगों से मिला और बॉर्डर का मैंने अपने आंखों से जायजा लेने की कोशिश किया और इंडियन आर्मी के लोगों से भी मिला। बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो कि कुछ इंफॉर्मेशन में मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है, देश के सीमा सुरक्षा के संबंधित मुद्दा है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं मीडिया में खुला डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है अभी अंडर कंट्रोल है। मोदी सरकार का स्ट्रांगली इस पे डील हो रहा है और खासकर मिलिट्री लेवल पे टॉक हो रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो टॉक हो रहा है उसको पूरे देश के साथ साथ लद्दाख वासी भी वेलकम करते हैं क्योंकि हम कभी नहीं चाहते हैं बॉर्डर का जो तनाव बढ़े, यहाँ पे युद्ध हो, वार हो, वो हम नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोग पीस लविंग लोग हैं, डेवलपमेंट चाहने वाले लोग हैं और ये दोनों देश के हित की बात है। आपने 3 दिन तक पूरे एलएसी का दौरा किया, मुझे अपनी आंखों देखी बताइए क्या दिखा आपको वहां? वहां पे जो है मैंने लोगों से मिला और हमारे खासकर सिविलियन लोगों में थोड़ा इनसिक्योर, थोड़ा डर जैसा फीलिंग्स है क्योंकि ग्राउंड से ज्यादा मीडिया में जो डिस्कस चल रहा है, बहस चल रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ग्राउंड रियलिटी से फार आवे है, बहुत सारे चीजें जो है एग्जेगरेट करके मीडिया वाले बताते हैं, उसको देख के लोग और भी ज्यादा डर रहा है। हालांकि ग्राउंड पे लोग तब से रहते आया है, ऐसे कुछ छोटे मोटे हरकत देखते आया है, ग्राउंड की सिचुएशन से हमारे लोग नहीं डर रहा है, लेकिन मीडिया वाले जो है डरा रहा है। और वो इंडियन आर्मी का जो है पूरे जोर शोर से अपने देश को बचाने के लिए जो लगे हुए हैं, मैं सबको सलाम करना चाहता हूं, सल्यूट करना चाहता हूं। और ओवरऑल मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इंडियन आर्मी के साथ साथ सिविलियन पॉपुलेशन जो है बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है, गार्डिंग कर रहा है, वहां के लोग, उनको एनकरेज करने की जरूरत है आज के डेट में। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने सिविलियन पॉपुलेशन की बात कही, 5 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी थी कि पैंगोंग सो के पास कई लोग, क्योंकि वहां वो चराने वाला एरिया भी है, तो चाइनीज लोग जो हमारा लैंड है वहां पर हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को जाने नहीं दे रहे हैं चराने के लिए। आपने क्या देखा? क्योंकि मैंने आपकी तस्वीरें देखी, आप पैंगोंग पे भी गए। जी हमारे जो एक्चुअल हेमलेट से विलेजेस है जहां पे लोग विंटर में रहते हैं और समर में अपने भेड़ बकरी या एनिमल्स को लेके आगे घास चराने के लिए जाते हैं। पहले आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जहां तक वो लोग जाते थे, आज वहां नहीं जा पाते हैं। उसमें 2 कारण है। एक तो इंडियन की ओर से कभी भी हम नहीं चाहते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़े, इसलिए कभी कभी इंडियन आर्मी भी उनको रोकते हैं। और खासकर आज के सिचुएशन में तो अभी सारा इंटरनेट, मोबाइल सारा बंद करके रखा है क्योंकि ये देश के नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे है। इस पे हम ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं। नामिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सच है कि चाइनीज आर्मी सिविलियंस को पैंगोंग सो में फिंगर 4 के आगे जाने नहीं दे रही है, उस इलाके में जहां वो पहले जाते थे चराने के लिए? नहीं, ये गलत बात है। चाइनीज आर्मी सिविलियन को कोई नहीं रोक रहा है क्योंकि चाइनीज आर्मी को रोकने वाला इंडियन आर्मी आगे बैठे हैं आज के डेट में। और हमारे लोग जहां पे समर जो पस्चर लैंड होते हैं वहां तक जब पहले जाते थे, अभी इस करंट टेंस सिचुएशन के वजह से इंडियन आर्मी जो है उनको अभी आगे जाने नहीं देते हैं क्योंकि ये सिचुएशन हम सब समझते हैं। बॉर्डर पे जब टेंस होते हैं
तो इंडियन आर्मी और देश के हित में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वो लगा हुआ है आज। जो बिल्डअप की बात की जा रही है, क्या आपको कुछ टेंट्स के बारे में बताया गया है? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स जो पहले नहीं होते थे, इस बार इस समर में देखे गए हैं, मई में, चाइनीज आर्मी के? ऐसे जितना भी इंफॉर्मेशन है वो फ्रंट लाइन पे क्या चल रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन का एक्सेसिबिलिटी इंडियन आर्मी के अलावा किसी और के पास नहीं है। मैं समझता हूँ वहां के जो सिविलियन जो है, जो याक चढ़ाने जाते हैं, जो बैल बकरी चराने जाते हैं, अगर उन्होंने कुछ देखा होगा तो आज से 3-4 महीने पहले के जो डेटा है उनके पास इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी 5 मई के बाद ये सिचुएशन जब आया, तब से लेके किसी भी सिविलियन को आगे जाने के अलाउड नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसे जितने भी इंफॉर्मेशन है इंडियन आर्मी के अलावा किसी और के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेसिबिलिटी उनके पास नहीं है, और मेरे पास भी वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि 5-6 महीने ऐसा इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गया था? नहीं, ये किसी ने मेरे ध्यान में नहीं लाया। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस क्या हाल फिलहाल में ऑन अ डाउनवर्ड स्विंग रहे हैं? वी आर सीइंग मोर अग्रेशन। कोविड के बाद क्या चाइना इंडिया को बुली करने की कोशिश कर रहा है? हर कोई देश जो है अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये सच बात है। लेकिन अपने देश की सरकार भी जो है अपने देश को आत्मनिर्भर करने से लेके अपने देश का जो छवि ऊंचा करने में अपने देश भी पीछे नहीं बैठा है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो इंडिया आगे बढ़ बढ़ के स्टेटमेंट देती है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि अब इतना साइलेंस क्यों है? ना हमने कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देखा है। पार्लियामेंट में कल राजनाथ जी ने बोला है कि शायद पार्लियामेंट में वो स्टेटमेंट देंगे, पर 40 दिन तक हमने ना आर्मी चीफ से कोई स्टेटमेंट सुना है, ना सीडीएस से। ऐसा क्यों? मैं समझता हूं ये साइलेंस नहीं है, ये डिसिप्लिन तौर पे काम कर रहा है। जब डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे टॉक चल रहा है तो उछाल के किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। नामग्याल साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ, आप जब गए थे वहां पर तो आपने कीकी सोसो लरग्यालो वहां पर बोला। ज्यादातर देश में लोगों को शायद पता नहीं होगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इंसिडेंटली मेरा भी रिश्ता रहा है लद्दाख स्काउट से, एक बहुत इमोशनल कनेक्ट होता है इस स्लोगन से। आप एक बार अगर वो हमें स्लोगन बताएंगे और देश को उसका मतलब बताएंगे। कीकी सोसो लरग्यालो जो है लद्दाख का बहुत पुराना और खासकर ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, और बुद्धिस्ट केवल बुद्धिस्ट ही नहीं, जो लोग गॉड में, भगवान में जो विश्वास रखते हैं उन सब का जो है ये एक स्लोगन है। इसका अर्थ ये है भगवान जो है अपने सच्चाई का जीत हमेशा आगे रखे, और साथ ही साथ सच्चाई को मानने वालों को जो है भगवान उनमें क्षमता दे, उनमें आशीर्वाद दे, उनमें सपोर्ट करे। और इस कीकी सोसो लरग्यालो के साथ हम भारत माता की जय भी बोलते हैं। Thank you very much, Mr. Namgyal, for having spoken to us. An auspicious note to end. And would you say कि ये आपका मैसेज भी है चाइना को कि सच्चाई की जीत होती है in a sense? जी, सच्चाई की जीत होते हैं। और मैं दोबारा कहना चाहूंगा, हम कभी युद्ध नहीं चाहते हैं, किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम देश के मस्तक को झुकने नहीं देंगे। हम कीकी सोसो लरग्यालो के साथ भारत माता की जय पुकारते हुए हम हमेशा आगे ही बैठेंगे। Thank you very much, Mr. Namgyal, for having spoken to us here on the News Hour Agenda.